Hello friends, this is Parveen Solanki. Friends, in this video, today we are going to discuss about the different types of tourism product. In our earlier lectures, we had discussed what is meant by marketing. Also, we had discussed what is meant by tourism marketing. Then we have discussed the objectives, purpose, or needs and importance of tourism marketing. Then we have discussed tourism product and its features. And now in today's lecture we'll discuss about the different types of tourism products. So first of all friends, let me clear that these all are the important types or categories of tourism products. Tourism products are classified into different categories such as tourism oriented products. Tourism oriented products are those products or services which are specifically created primarily for the tourist, but also these facilities or these products are enjoyed by the local people. Okay, so in this type of product, investment is largely made in the private sector. For example, hotels, motels, then your restaurants. Okay, so these things are not only enjoyed by the tourist but local people also enjoys. For another example, we can say tourist transportation like taxis, luxury buses. Okay, so these all things are enjoyed by the locals as well as by tourist. So tourism oriented products are those products which are produced, or the products or services which are specifically created for the tourist and enjoyed by the local people also. Okay, so tourism product ऐसे product है, tourism oriented product ये इस type का product है कि जो local लोग भी use कर सकते हैं, tourist लोग भी उसको enjoy कर सकते हैं. ठीक है. Then second जो category है हमारी tourism product की, वो है resident oriented products. Friends, in this type of products, the products and services are built largely for local residents of particular tourist destination. These are also used largely by the tourist. For example, स्टेडियम बनाया जाता है, जैसे आईपीएल के लिए अगर स्टेडियम बनाया हुआ है तो भले वो आईपीएल के लिए यूज़ होगा, लेकिन यूजुअली जो है वो स्टेडियम किसी और पर्पस के लिए भी वो यूज़ लोकल लोग कर सकते हैं. ठीक है. सो रेसिडेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स are such a products or services which are built largely for local residents of particular tourist destination and also used largely by the tourist. Okay, so for example we can say health services, public parks, ATMs, then petrol pumps, postal services, local transportation. These all things are example of resident oriented products. थर्ड जो कैटेगरी है या थर्ड जो टाइप है वो है बैकग्राउंड टूरिस्ट एलिमेंट. These type of tourism products include man-made events, theme parks, natural attractions, geographical attractions. Okay, it also include flora and fauna. Okay, so ऐसी चीज़ जो man-made है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेचुरल प्लेसेस भी इसके अंदर आएंगे, और मैन-मेड प्लेसेस जो है वो बेसिकली बैकग्राउंड टूरिज्म के अंदर, बैकग्राउंड टूरिस्ट एलिमेंट के अंदर आ जाएंगी. ओके, सो इस टाइप के टूरिज़्म के को कहते हैं बैकग्राउंड टूरिस्ट एलिमेंट. देन जो बैकग्राउंड टूरिस्ट एलिमेंट के अंदर क्या इंक्लूडेड है, नेचुरल टूरिज़्म जो है, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है जो नेचुरली अवेलेबल है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है. और जो मैन मेड है, नेचुरल टूरिज़्म प्रोडक्ट्स कौन से हैं, जैसे है एक पर्टिकुलर एरिया का नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ का क्लाइमेट है, वाटर लेक्स है, पॉन्ड्स है, रिवर्स है, वाटरफॉल्स है. ओके, या बीचेस है, आइलैंड है, ये सारी चीज़ें नेचुरल के अंदर आ जाएंगी. ओके, बैकग्राउंड टूरिस्ट एलिमेंट के अंदर नेचुरल में ये सारी चीज़ें आएंगी. और मैन मेड टूरिज़्म के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कल्चरल साइट्स है, एक आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट की जो प्लेसेस है, वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, मोनूमेंट्स है, हिस्टोरिकल
सिग्निफिकेंस के लिए जो म्यूज़ियम्स वगैरह बनाए हुए हैं, ओके, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या ट्रेडिशनल एंगल से देखें तो पिलग्रिमेज के लिए या फेयर, फेस्टिवल, स्पेसिफिक डांस वगैरह है, ओके। सो ये जो चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट जिससे किया जाता है और वो मैन मेड है, लोगों ने बनाया हुआ है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बैकग्राउंड टूरिस्ट एलिमेंट के अंदर आती है। उसके बाद अगला जो टाइप है टूरिज़्म प्रोडक्ट का वो है सिम्बायोटिक tourism product. These products are blending of man-made and nature. Okay, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मरीन पार्क्स, एरो प्रोडक्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, फ्लावर फेस्टिवल्स, ओके, फूड फेस्टिवल्स है। तो ये ऐसा टूरिज्म प्रोडक्ट है जो क्या है, कॉम्बिनेशन है मैन मेड का भी और नेचुरल का भी, ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो प्रोडक्ट रेडी होता है उसे बोलते हैं हम सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट जो टाइप है वो है एडवेंचर टूरिज्म प्रोडक्ट। ओके, नाउ एडवेंचर टूरिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू एरियल, वाटर बेस्ड, लैंड बेस्ड। ये सारे जो एग्जांपल्स है ये एडवेंचरस के लिए, जिसके अंदर जो टूरिस्ट है वो कुछ एडवेंचर करना पसंद करते हैं, ओके, जैसे पैराग्लाइडिंग है, पैराशूटिंग है, या स्काई डाइविंग है, ओके, बलूनिंग है, पैरासेलिंग है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी एरियल एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर आती है। वाटर बेस्ड के अंदर आप देखेंगे कि भाई वाइट वाटर राफ्टिंग वगैरह होता है, ओके, ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स कहलाते हैं, ओके। स्नॉर्केलिंग है, याकिंग है, वाटर स्काइंग है, ये सारी चीज़ें जो है ये एडवेंचरस टूरिज्म के अंदर आती हैं। देन नेक्स्ट जो टाइप है वो है इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट्स। ओके, सो दीज प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन द इवेंट्स। जैसे पर्टिकुलर इवेंट जो है वो अट्रैक्शन का पॉइंट होता है, इट इज़ एन इवेंट बेस्ड टूरिस्ट प्रोडक्ट। इवेंट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट, ओके, वो पर्टिकुलर इवेंट है जैसे होली है, ये ऐसा इवेंट है कि जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। या आप बोल सकते हैं कि मकर संक्रांति के वक्त काइट फ्लाइंग के लिए अहमदाबाद में लोग टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, ओके। तो ये पर्टिकुलर इवेंट के अकॉर्डिंग जो टूरिज़्म है उसको प्रमोट किया जाता है, और ऐसा जो इवेंट है उसको टूरिज़्म के लिए इवेंट बेस्ड टूरिज़्म प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ओके। So in this way today we have discussed the different types of tourism product. Now the next tourism is next type of tourism product is site based tourism product. Site based tourism product, when an attraction is a place or site, then it is called a site based टूरिस्ट प्रोडक्ट। यानी जब अट्रैक्शन के लिए जो पर्टिकुलर प्लेस या एक पर्टिकुलर साइट है वो जब इम्पोर्टेंस पूरा अपने तरफ ड्रॉ करती है ना, तो उस साइट को पूरा इम्पोर्टेंस चला जाता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं कि भाई ताजमहल है, या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ओके, या स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ओके, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो ये पर्टिकुलर साइट है और वो साइट जो है वो टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो ये जो साइट है ना, इसकी बेस पे ये प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट हुआ है, वो डेस्टिनेशन स्पेसिफाई हुई है। तो ऐसी साइट के बेस पे जो टूरिज़्म प्रोडक्ट डिफाइन हुआ है, लोग टूरिस्ट जिसको देखकर अट्रैक्ट होते हैं, उस टाइप के टूरिज़्म प्रोडक्ट को बोलेंगे साइट बेस्ड टूरिज़्म प्रोडक्ट। अगला टाइप है रिट्रीवेबल tourism product. Retrievable tourism product, it includes memories of different types, different topics like various heritage sites, historical monuments, important pilgrimages, caves। जैसे एक पर्टिकुलर प्लेस पे कुछ तो प्रोडक्ट फेमस होता है, और उस फेमस प्रोडक्ट के बेस पे वो जगह जो है वो पहचानी जाती है। जैसे कुल्लू की शॉल्स एंड टोपीज़ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। देन मिल्क केक्स जो है ये वहाँ के फेमस है। देन पेठा मथुरा का, इडली डोसा साउथ इंडियन है। मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस का जो वहाँ का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसके बेस पे उस प्रोडक्ट को लोग जानते हैं, ओके, उस जगह को लोग जानते हैं। तो इस तरह का जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है कि जो रिट्रीवेबल बेस पे डिफ़ाइन किया गया है, किसी चीज़ की मेमोरीज़ के को याद दिलाकर। जैसे अभी औरंगाबाद में हम जो देखते हैं कि वहाँ के जो केव्स वगैरह है, तो
वो केव्स जो है वो कुछ याद दिलाते हैं, ओके, कुछ रिट्राइव करते हैं। तो ऐसे मेमोरी बेस्ड जो चीज़ें हैं कि जो डेस्टिनेशंस टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स को बोलेंगे रिट्रीवेबल tourism products. Okay, so in this way, in today's presentation we have seen all the different types of tourism product. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Thank you.